to my channel and welcome back to a final sit down video. I have been waiting to film this video for so long. So it is gonna be a get ready with me for Diwali. This is an outfit from scratch जिसका आप shorts बाद में देखोगे and it is inspired by Kareena Kapoor's iconic look in one of her wedding functions या फिर किसी और का था कुछ, but I really liked that look so I recreated it and today I'm gonna show you guys how I achieved this look right here. This makeup I literally love so much. इसके साथ मैं आज आंसर करने वाली हूँ आपके सारे क्वेश्चंस. मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था. I literally got a lot of questions regarding everything that truly matters in my life and I'm really happy to answer them for you guys. So without any further ado, let's get started. Okay जी, so this is my face without makeup and first of all I would really like to apologize to you guys for the construction noise जो आती रहेगी जाती रहेगी. आसपास हमेशा मेरे construction मुझे follow करती है but we really can't do anything about it. I'll try to keep that connection strong. In case you guys are more interested in makeup तो आप नीचे description box देख लेना, सारे आपको links मिल जाएंगे. Alright, so the first question is by Sagarika. Influencers or YouTubers who have been negative to you, take names if you wish to. So the truth about this industry is Sagarika, one day or another कभी ना कभी ऐसा होगा ही कि someone will be mean to you or you will misunderstand someone कि ये हमारे साथ mean हो रहे हैं. But I wasn't like clever enough to understand it. I have shared मेरे previous Q&A में one instance जिसमें a YouTuber made me feel a little like small and I would not like to name them because they're not a YouTuber anymore. And now तो our industry is at a stage right now कि everyone is very kind to each other because everyone, I think post pandemic creators in general जो हमारा सबका group है, whatever city, we have all been kind of united and kind to each other. Like बिना बात पे कोई shade throw नहीं करता है, बिना बात पे कोई भी किसी को ऐसे छोटा feel नहीं कराता है and that is what I really appreciate about post pandemic YouTube circle. You guys know I'm not one to shy away if anybody calls me out या फिर मेरे को कोई भी दिक्कत होती है. I'm very vocal about these things. So definitely अगर कोई मेरे से पंगे लेगा तो I will let you guys know, but अभी as of now ऐसा कुछ भी नहीं है. Do you ever feel intimidated by other YouTubers when you do collabs? The truth is पहले हाँ मैं बिल्कुल होती थी बिकॉज मुझे ना पहले इस इंडस्ट्री की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी. जब मैंने शुरू में कोलैब्स करना स्टार्ट किया था, आप लोगों ने मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा होगा. आई डू नॉट कोलैब जस्ट लाइक दैट विद अदर यूट्यूबर्स, बट ये जरूर लगता है ऑफ लेटली मैंने जिस भी यूट्यूबर के साथ कोलैब किया ना, सबसे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है. एंड एक चीज़ मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी इस चीज़ से ब्लेम नहीं करना चाहती, बट कभी कभी कुछ लाइक 1% अमाउंट ऑफ ऑडियंस होती है जो कि कोलैब होने के बाद ना नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ कचरा मचा देती है. इंटिमिडेशन का कोई पॉइंट नहीं है. देयर इज ऑलवेज समथिंग टू लर्न एंड सिंस यू आर अ पब्लिक फिगर, जो ओपिनियंस आएंगे यू हैव टू एक्सेप्ट इट विद फोल्डेड हैंड्स. द स्किन इज लुकिंग हेला गुड. इट इज प्रेप्ड. मैंने लिप बाम लगा लिया है. नाउ वी आर गोना स्टार्ट विद मेकअप. As an influencer, which time of the month is most beneficial for you? Just think from the brand's perspective and आपको ना उस चीज़ का आंसर मिल जाएगा. Like brand सबसे ज़्यादा सेल कब करते हैं? दिवाली के टाइम, न्यू ईयर जो एंड ऑफ सीजन सेल होती है, फेस्टिव मेकअप, लुक्स, क्लोथिंग, उस सब की ऐसे बाढ़ सी आ जाती है. सो आई फील लाइक ये जो नवरात्रे से टाइम स्टार्ट होता है ना, बिल्कुल ऐसे कंजके, उसके बाद जो दिवाली, धनतेरस, वो वाला टाइम बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स के लिए बेनिफिशियल होता है एंड ब्रांड्स के लिए भी. बट ये हमारी कमाई का, धंधे का सबसे अच्छा टाइम होता है, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते. यू कैन हैव सो मेनी डिफरेंट टॉपिक्स जिस पे आप कंटेंट बना सकते हो, शॉर्ट फॉर्मेट, लॉन्ग फॉर्मेट व्लॉग्स कर सकते हो, एज वेल एज इस टाइम पे आपको ब्रांड की स्पॉन्सरशिप्स भी काफी ऑफर होती है. सो दैट इज लिटरली द गोल्डन पीरियड. ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज हाउ इज शान एज अ बॉयफ्रेंड टू यू? आई फील लाइक आई डोंट फील एनी डिफरेंस राइट नाउ सिंस द टाइम आई हैव अनाउंस्ड माई रिलेशनशिप और डिस्क्लोज थिंग्स अबाउट इट. आई डोंट फील एनी डिफरेंस. वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम एंड वी हैव नोन ईच अदर मोर एज फ्रेंड्स. वो जो शुरू का फेज होता है, दैट इज नॉट द केस बिकॉज पर्सनली आई फील दैट इज द time when people fake the most and I am really happy that I'm past that stage. Are you and Ishan planning your future together and why are you not attending events lately? मेरे को ना जैसी मेरी नेचर है, मैं नहीं इतना कंफर्टेबल फील करती हर इवेंट में जाने के लिए. अभी भी मुझे लैक्मे फैशन वीक के लिए एक पेड अपॉर्चुनिटी आ रही थी फ्रॉम लैक्मे इटसेल्फ, जिसमें मुझे पूरा इवेंट कवर करना था, व्लॉग करना था एंड ब्रांड को टैग करना था, वहाँ जाके ब्यूटी लुक्स क्रिएट करनी थी. इट वॉज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बट इट सो हैपेंड दैट उसी टाइम पे ना मेरे रूम का मेजर काम होना था और मेरे वैनिटी का एंड मेरे घर का मेजर काम होना था. एंड अगर आप मेरे को फॉलो करते हो आपको पता है कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम ही यही है कि मुझे घर लेना है. सो घर जब बन रहा है एंड फाइनल टचेज हो रहे हैं जिसको मैं काफ़ी सालों तक ना चेंज नहीं करा पाऊंगी. आई वांट टू डू सम परमानेंट वर्क जिस वाइब से मैं बहुत खुश हूँ. तो आई चोज माई हाउस एंड आई चोज माई फैमिली. लास्ट टाइम भी आपने मेरे इसी किसी व्लॉग में देखा होगा कि मुझे बॉडी शॉप के इवेंट में जाना था एंड रवि का पैर टूट गया था. इस साल मेरी किस्मत इवेंट्स के मामले में काफ़ी खराब रही है. पहले ऐसा होता था इवेंट्स के इन्वाइट्स नहीं आते थे, अब इन्वाइट
इनवाइट्स आने लगे हैं तो मैं नहीं जा पा रही हूँ एंड दैट इज़ जस्ट वियर्ड। बट मुझे 2-3 चीज़ों की बहुत एक्साइटिंग अभी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है जो कि आपको आई थिंक नवंबर में रिवील हो जाएगी आई थिंक। सो या तब आप लोगों को ये कंप्लेंट मेरे से नहीं होगी। आर यू एंड ईशान प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर टुगेदर? वी ऑनेस्टली हैवंट टॉक्ड अबाउट इट। आपकी चीज़, आपकी खुशियाँ ना आप पे बैकफायर हो जाती है इन दिस सोशल मीडिया कम्युनिटी। सो आई वांट टू बी वेरी केयरफुल व्हेन आई से समथिंग, आई रियली वांट टू मीन इट एंड दैट इज़ व्हाई इस चीज़ का आंसर मैं अभी नहीं दे पाऊंगी। अगर कुछ फ्यूचर में हुआ आई विल श्योरली लेट यू नो। नेक्स्ट वन इज समथिंग जिसने मेरा काफ़ी इट मेड मी feel triggered and very weird in some way and I contemplated a lot बैठ के जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, should I answer it, should I not answer it, because it's not related to me at all and since it's out there in public सब अपना opinion chime in कर रहे हैं and मुझसे भी तभी ये पूछा गया। So the question is your thoughts on कृतिका separation because अभी तो शादी हुई थी यार। अगर मेरे साथ ये हो रहा होता, चाहे किसी भी रीज़न की वजह से हुआ, मेरी वजह से या मेरे पार्टनर की वजह से, एंड कोई ऐसे बोल रहा हो कि अभी तो शादी हुई थी यार, अभी ये हो गया, डोंट यू थिंक आई रियलाइज दैट? डोंट यू थिंक आई हैव बिन थ्रू दिस इन माई माइंड अ मिलियन टाइम्स बिफोर अनाउंसिंग इट ऑन सोशल मीडिया एंड आई स्टिल डिड इट बिकॉज आई ओ इट टू माई सब्सक्राइबर्स एंड जितने सालों से आप काम कर रहे हो आप उनको एक फैमिली और अपना समझ के ये चीज़ बता रहे हो एंड ओपिनियंस आर ऑलवेज वेलकम। आई नो कि इस फील्ड में थिक स्किन होना बहुत ज़रूरी है बट थिक स्किन और पत्थर होने में बहुत डिफरेंस होता है। आई नो आई थिंक इन 2021 आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम पर्सनली प्रोफेशनली। उस टाइम पे जो मेरे साथ हो रहा था ना उसको लेके सम यूट्यूबर्स जस्ट चाइम्ड इन देयर ओपिनियन। उन्होंने क्लियरली बोला हुआ है कि लेट मी मूव ऑन फ्रॉम दिस, इट्स बिटवीन हर सो एंड हर एक्स पार्टनर। आई एम ओनली सेइंग दिस बिकॉज शी वॉज एंड स्टिल इज एन आइडल। लोगों से ना जाके कि इसके साथ ये हो गया आपका क्या ओपिनियन है ये पूछना थोड़ा सा अगर आप लिमिट कर दोगे ना, आई फील लाइक लोग पीसफुली अपनी किसी भी लॉस से मूव ऑन जल्दी कर पाएंगे and who doesn't want people to heal? I feel like this community should be all about letting and allowing people to heal in whatever way they feel fit and इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन टेकअप किया। I still don't know कि मैं इसको एडिट में रखूंगी या नहीं रखूंगी बिकॉज पूरे आंसर के दौरान मैंने मेकअप नहीं किया। दिस इज हाउ मच इट मैटर्स टू मी कि दूसरे के फट्टे में टांग अड़ाना ज़रूरी नहीं होता है हमेशा, इवन इफ दे आर अ पब्लिक फिगर, दे आर ह्यूमंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी मोर ट्रिप्स प्लान्ड फॉर दिस ईयर? येस, दैट इज अ बिग फैट येस माई फ्रेंड। आई थिंक आई टेक अ छोटा सा ब्रेक बीच में क्योंकि मेरे को शिफ्ट करना है अपने खुद के घर में एंड उसमें बहुत टाइम लगेगा, फिर सेटअप वगैरह ये सब करने में बहुत टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी लाइन में है जो मैंने आंसर किया। व्हेन आर यू शिफ्टिंग टू योर ओन हाउस? बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई थिंक 28 या 30 अक्टूबर के अराउंड विल बी एबल टू शिफ्ट। अभी घर का फाइनल काम चल रहा है, फिनिशिंग टचेस हो रहे हैं, सो आई विल बी एबल टू शिफ्ट अक्टूबर एंड में क्योंकि आई डोंट वांट टू पे रेंट फॉर दिस हाउस नवंबर के लिए भी एंड नवंबर से मेरे घर की किश्तें कटना भी स्टार्ट हो जाएंगी तो डबल ट्रबल हो जाएगी। व्हाट इफ यू डिडंट हैव दोस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स? कैसी होती मेरी लाइफ उसके बाद? सो आई फील लाइक मेरी लाइफ काफ़ी डल होती बिकॉज जो चीज़ें मैंने लाइफ में अपनी देखी है ना उसके लिए मैं काफ़ी अब जाके ग्रेटफुल हूँ बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड द फैक्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन योर लाइफ फॉर द ग्रेटर गुड। मेरे साथ लाइफ में इतनी ऊट पटांग चीज़ें हुई पड़ी हैं बट उसके बाद मैं आज जहाँ पे हूँ मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। मे बी मैं भी बहुत ऐसे प्रिविलेज सी फील करती एंड ऐसा होता बाप का पैसा उड़ा रही होती मज़े से, मुझे घर लेने की ज़रूरत नहीं होती, मैं अपने पापा को बोलती कि क्यों नहीं आप लोग घर एंड आप मुझे गाड़ी लेके दो। बट नाउ आई कैन प्राउडली से दैट आई एम सेल्फ मेड। मेरे पेरेंट्स ने मेरी एजुकेशन के लिए जितना भी सेव किया था वो अच्छे से उन्होंने यूज़ किया है एंड दे मेड मी केपेबल इनफ टू फाइंड any kind of job for myself so that I am self sufficient and अब तो मैं बाकी पूरे घर का भी ध्यान रखती हूँ। जब घर में कूलर तक नहीं होता था तो हमारी पुरानी स्कूटी बेच के जो कुछ पैसे आए थे उसमें हमने कूलर में कंट्रीब्यूट किया था। जब मम्मी ने गोल्ड बेचा था और हम उससे राशन ला रहे थे, सो वो सारी चीज़ों से आपको ना पैसे की वैल्यू बहुत जल्दी पता चलती है। एंड नाउ जब मैं बड़ी बड़ी चीज़ें लेती हूँ, येस आई फील वेरी गुड बट एट द सेम टाइम वो जो छोटी सी अदिति है ना जिसने वो टाइम देखा था वो हमेशा एक चेक रखती है दिमाग में कि क्या मैं अपने पैसे फालतू उड़ा तो नहीं रही। सो मेरा हर एक डिसीजन चाहे मैं महंगी से महंगी चीज़ ले लूँ मैं तभी लेती हूँ जब मेरे पास सेविंग्स हो अपनी एंड मैं उस चीज़ को प्लान करती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मैंने आईफोन लिया था तो मैंने उस चीज़ को प्लान करके लिया था। वो मैंने सोचा हुआ था कि आएगा फ़ोन तो मैं इतने पैसे साइड में रखूँगी, इतने तक का होगा एंड मैं लूँगी। आज जो मैं हूँ वो उसी की वजह से हूँ, मेरी एक पर्सनैलिटी का पार्ट बन गया है एंड आई फील रियली प्राउड टू हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ दिस एंड आई थैंक गॉड कि अब इस टाइम पे जब मैं 28 साल की हो चुकी हूँ तब वो टाइम नहीं आया, नहीं तो बहुत मुश्किल होता। उस टाइम पे दिमाग ऐसे छोटा सा था, निकल गया, किसी तरह कट गया वो समय एंड अच्छी चीज़ें ही सिखा के गया। नेक्स्ट वन इज विद यू अचीविंग योर अल्टीमेट गोल ऑफ हैविंग अ हाउस व्हाट इज नेक्स्ट? ऑनेस्टली आई वाज थिंकिंग आउट लाउड। मैं ईशान के साथ ऐसे ड्राइव पे गई थी एंड आई वाज टॉकिंग टू हिम कि यार मेरा जो लाइफ गोल है वो पूरा हो गया है, लाइक इट्स लिटरली इट
एंड मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि जब मैं छोटी नहीं, जब मैंने यूट्यूब के मिड में थी तो मैं यही सोचती थी कि यार एक बार मेरा घर हो गया ना, मैं चैन से मर सकती हूँ, मुझे और कुछ लाइफ में अचीव नहीं करना है, मेरा यही गोल था। बट नाउ क्योंकि ये आई फील लाइक इतनी जल्दी हो गया है, लोगों को अरसे लग जाते हैं, लाइक पीपल बाय हाउसेज एट द एज ऑफ 40 या 40+। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने 20s में एक बहुत अच्छा घर ले लेते हैं। तो जो अभी मेरा ये इतना लाइफ लॉन्ग गोल पूरा हो गया, ऐसा लग रहा है मुझे तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल गया है फिल्मफेयर का। बट मे बी एन इंटरनेशनल ट्रिप वुड बी नेक्स्ट। मैं इतनी क्रेजी नहीं हूँ अभी किसी भी चीज़ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको मैंने बोल के आप लोगों को थका दिया और अब आप लोग पूरी हिम्मत हार चुके हो, इज व्हेन आर वी मीटिंग द न्यू फैमिली मेंबर। सो मैं ना पहले एक व्लॉग बनाना चाहती थी जिसमें मैं न्यू फैमिली मेंबर रिवील करूँ एंड लाइक डू अ फुल हाइप्ड अप थिंग, बट आई एम ओवर इट, लाइक आई डोंट वांट टू डू इट। मैंने ना ये छुपाया भी नहीं है। आप लोग अगर मेरे पिछले व्लॉग्स उठा के देखोगे, आपको कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में मेरा वो न्यू मेंबर घूमता दिख जाएगा। सम पीपल वर लाइक इट्स ईशान, क्या आप शादी कर रहे हो, क्या पता आप एक नया पपी घर में ला रहे हो, वो है न्यू मेंबर। एंड मोस्ट ऑफ यू गेस्ड इट राइट कि इट इज़ दिवाकर भैया। सो या आप लोगों ने उनको इंस्टाग्राम पे भी ढूंढ लिया। सम पीपल वर लाइक ये है ना उनकी प्रोफाइल। एट दैट पीरियड जब वी कुडंट पे हिम एंड सैलरी नहीं दे पा रहे थे, तो फिर ही वर्क समवेयर एल्स, बट नाउ ही इज़ बैक एंड वी आर वेरी हैप्पी। हमारे घर में उसका एक अच्छा खुद का कमरा, प्राइवेट स्पेस होने वाला है एंड वहाँ पे पूरी प्रॉपर अलमारी, बेड, ये वो, लाइक जस्ट लाइक अ फैमिली मेम्बर वैसे होने वाला है। प्लस वो बहुत अच्छा खाना बनाता है, सो आई मिस्ड हिज फूड ऑल ऑफ दीज ईयर्स। मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि जो चीज़ें हमारे बुरे टाइम पे चली गई ना लाइफ से, वो वक्त मैं वापस लेके आ पाऊँ। मेरी मम्मी की भी अब थोड़ी उम्र वैसी हो रही है, शी गेट्स टायर्ड, शी हैज़ ऑस्टियोपोरोसिस, उनको अब वो स्किन वाली एलर्जी भी बीच बीच में निकल आती है। सो आई रियली वांटेड टू हेल्प हर आउट एंड गिव हर रेस्ट। तो तभी आप लोग मिस कर रहे हो मेरी मम्मी की कुकिंग वीडियोस। इतना ज़्यादा हम नहीं डालते हैं। पुरानी वीडियोस जाके देखोगे तो खाना बनाते हुए आपको दिवाकर का ही हाथ दिखेगा, वो मेरी मम्मी का हाथ नहीं है। सो येस, दैट इज़ द रिवील, न्यू मेंबर ऑफ द फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स नेक्स्ट, अ ब्रांड लॉन्च? आई डोंट थिंक सो। मुझे पता है कि घर ले लिया, गाड़ी ले ली, उसके बाद यूट्यूबर्स का और क्या एक पैटर्न चल रहा है विच इज़ लॉन्चिंग ब्रांड्स एंड आई एम रियली हैप्पी। जिन भी यूट्यूबर्स गर्ल्स ने ना अभी तक अपना ब्रांड लॉन्च किया है, आई एम जस्ट रियली एक्साइटेड फॉर देम। बट ट्रूथ बी टोल्ड, आई डो नॉट हैव इट इन मी गाइज। बट लाइक नेवर से नेवर, अब कभी खोल लिया तो ये मत मेरे पीछे बोलने आ जाना कि तुमने तो बोला था कि ब्रांड नहीं खोलूंगी। अभी के लिए मुझे ये बिल्कुल अपने लिए पॉसिबल ही नहीं लगता है, बट अगर कुछ चमत्कार हो गया लाइफ में तो तब की तब देखेंगे। नेक्स्ट वन इज हाउ आर यू मैनेजिंग ट्रिप्स एंड एवरी अदर एक्सपेंस along with home loan? YouTube earnings are this high? Yes, my darling, they are. YouTube earnings are exponential if you are at a certain level. I mean, abhi we are about to hit 1 million very soon. Like आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक चैनल जिसके एवरेज व्यूज़ जितने मेरे आते हैं उतने आते हो, प्लस वो 1 मिलियन के करीब हो एंड रोज़ कुछ ना कुछ अपलोड कर रहा हो, तो उसकी इनकम इतनी तो हो ही जाएगी कि बाकी सारी चीज़ें यू नो काइंड ऑफ मैनेज कर सके। एंड देन यू हैव सेविंग्स। आई सेव अ लॉट। बैंक भी पागल नहीं है यार, बैंक भी बिल्कुल इतना सारा चेकिंग्स होती है, सब देखते हैं कि बंदी पे कर पाएगी या नहीं। एंड ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर अ गर्ल हु इज सेल्फ एम्प्लॉयड इन अ वेरी अनकन्वेंशनल करियर लाइक बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, अ क्रिएटिव पर्सन, जिसको आधे लोगों को पता नहीं होता कि ये जॉब होती है, इट्स ब्लडी टफ टू गेट अ लोन अपने नाम पे। बट बैंक्स बहुत ज़्यादा चेक करते हैं एंड तभी मेरी इनकम के हिसाब से मुझे लोन मिला है, होम लोन। देन जो मैं सेविंग्स करती हूँ या मैं जो भी परचेजेस करती हूँ ना, उसका एक रीज़न होता है कि मुझे उसके ऊपर वीडियो बनानी होती है। सो वीडियो के लिए मैं एक अलग बजट रखती हूँ पर मंथ का कि इस बार ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, इस बार कम खर्चा होगा, इस बार हम सस्ती चीज़ों वाला चीप प्रोडक्ट्स ट्राई करेंगे। सो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस एंड ऑन टॉप ऑफ इट, येस, यूट्यूब अर्निंग्स आर दैट हाई। टू यूट्यूब शॉर्ट्स पे, येस दे डू पे। मुझे भी ये बहुत बाद में पता चला जब मैंने रेगुलर अपलोड करना स्टार्ट हुआ। आपको यूट्यूब से एक मेल आता है कि आपके इस बार शॉर्ट्स अच्छे गए हैं एंड देन ये है आपका शॉर्ट्स फंड इतना बना है। एंड अभी एक और अच्छी खबर आई है हम यूट्यूबर्स के लिए, विच इज़ दैट स्टार्टिंग जनवरी आई फील शॉर्ट्स भी मोनेटाइज होने शुरू हो जाएंगे। सो एड्स उसमें प्ले होंगी। आई थिंक कुछ 40% शेयर मिलेगा, 60% यूट्यूब अपने पास रख लेगा जितना भी आपने कमाया होगा एंड 40% आपको उसमें से कमीशन या सॉर्ट ऑफ पेमेंट मिलेगी। डू यू हैव PCOS और जस्ट लिटिल हार्मोन इम्बैलेंस? आर यू ऑन एनी मेडिकेशन? येस, आई
एम। अभी जब मैंने कोलकाता गुजरात के टाइम काफ़ी ट्रैवल किया ना, आई डोंट नो, थोड़ा मैंने ज़्यादा ही वहाँ पे ठूस लिया, खा लिया, थोड़ी अपने मन की कर ली, एक रूटीन फॉलो नहीं किया, एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं कर पाई। सो मेरे पीरियड्स फिर से थोड़े ऊपर नीचे होने लगे एंड नाउ आई एम ट्राइंग फिर से कि ठीक हो जाए थोड़ा, बिकॉज यू नो आपका जैसे लाइफस्टाइल थोड़ा डींगा विंगा होने लगता है, ऐसे डावाडोल सा, तो फिर यही होता है कि आपके पीरियड्स और वो पीसीओडी वाला चीज़ ना वापस आने लगती है। सो दिस इज अ कॉन्स्टेंट लाइफस्टाइल एंड देन यू आर ऑन अ लॉट ऑफ मेडिकेशन। हाउ डू यू मेक श्योर दैट द हेट कॉमेंट डजंट टेक अ टोल ऑन यू? दैट इज़ वेरी सिंपल। मैंने शुरू में बहुत ज़्यादा हेट से डील कर लिया था जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, एंड ड्यूरिंग द लॉकडाउन इट वॉज एट इट्स पीक एंड पीपल वर मिसअंडरस्टैंडिंग मी लेफ्ट राइट एंड सेंटर। एंड उस टाइम पे शुरू में मुझे लगा था, उसके बाद मैं क्योंकि थेरेपी ले रही थी तो इट हेल्प मी अ लॉट इन हैविंग कॉन्फिडेंस इन हु आई एम, एंड एक दूसरा बबल व्हाट पीपल परसीव ऑफ मी, एंड वो दोनों चीज़ें बहुत ही डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड में है, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा अब इफेक्ट नहीं होता है। बिकॉज वंस यू आर वेरी मच श्योर अबाउट आप जो हो, आपका क्या पर्पज़ है इस चैनल पे, यूट्यूब पे, अपनी लाइफ में, अपनी जॉब पे, अपने रिलेशनशिप्स में, इफ़ यू आर क्लियर अबाउट इट, उसके बाद लोग कुछ भी बकवास करें फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज देन इट्स योर डिसीजन ना कि आप अपने बबल में रह रहे हो या फिर आप किसी और के थॉट प्रोसेस में इन्वेड कर रहे हो एंड बोल रहे हो कि बताओ बताओ तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो मैं वो चीज़ करती नहीं हूँ। लाइक अगर आप दिवाली की सफाई कर रहे हो ना, आपके घर में सब कुछ साफ है, वाई वुड यू गो टू अ डस्टबिन एंड गेट ऑल द ट्रैश एंड देन इंक्लूड इट अपने घर में? आप अपना घर साफ रखो, बाहर इधर उधर देखने की क्या नॉइज चल रही है उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ऑल ऑफ इट लिटरली इज जस्ट नॉइज एंड नथिंग else. What people think about you really doesn't matter if that section is very small compared to the huge audience that I have and who love me so much. Next one is, when you gonna do more collabs? By the way, loved your way of answering in Janvi's video. Thank you so much. I really try to bring my A game, my real mean side out. Like जैसा मैं फील करती थी मैंने वैसा बोल दिया। अपने चैनल पे ना थोड़ा आप संभल के रहते हो, किसी को ऑफेंड ना कर दो। I don't know what happened, मैं गुजरात जाके ना कुछ ज़्यादा ही खुल गई थी। चाहे किसी के चैनल पे डल रहा है, चाहे अपने चैनल पे डल रहा है, वाई टू बी फेक? अगर आप कुछ सोचते हो एंड अगर आपको लगता है कोई चीज़ के बारे में कोई ओपिनियन है, लोग भी तो नीचे इतने बथेरे ओपिनियन दे के जाते हैं ना, तो मैं नहीं दे सकती। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। आई वुड रियली लव टू कोलैबोरेट विद देम। मृदुल अगेन फॉर श्योर। हेली से बहुत टाइम हो गया मेरी बात नहीं हुई है। आई रियली वॉन्ट टू गेट इन टच एंड कोलैब विद हर, एंड कभी मुंबई चक्कर लगा तो मानसी और सारा को भी चपेटे में लेंगे, देखते हैं। लाइक आई रियली लाइक ऑल ऑफ दीज गर्ल्स, सो जब मौका मिला आई विल डेफिनेटली हैव दैट। बट अभी ना मेरे ट्रैवल्स इतने बथेरे हैं तो टाइम इतना ज़्यादा मैनेज हो नहीं पा रहा है। विच इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपन टू यू एक्सेप्ट यूट्यूब सक्सेस? कैन आई बी रियली फ्रिकिंग ऑनेस्ट विद यू गाइज? Like really honest, I feel like meeting Ishan and being his friend and now whatever we have is, I feel like the one of the best things that has happened to me has been there जब मैं क्वर्की मिस थी भी नहीं, मैं सिर्फ अदिति थी, गुड्डू थी एंड एक पढ़ाई करती हुई लड़की थी, एंड उसने वो मेरा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, मैंने भी उसके बहुत ट्रांसफॉर्मेशन देखे, एंड वी हैव स्टक बाय ईच अदर। तो वो चीज़ मेरे को ईशान में आई कैन ट्रूली फाइंड इट, एंड अपार्ट फ्रॉम द यूट्यूब सक्सेस एंड बाइंग अ हाउस एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दीज आर द रिलेशनशिप्स, few relationships that really matter to me. Okay, the next question is, how do you gather the courage to work on what absolutely should be done when you feel at your lowest? Personally for me, I feel like because जब मैंने YouTube start किया, मैं अपने लाइफ के सबसे ज़्यादा लो वाले फेज में थी, मुझे अब ये रूटीन लगता है। लाइक ये डार्क कहाँ है, ये तो ज़िंदगी है, वो वाला लाइफ का हिसाब हो जाता है कि उस सिचुएशन में मैंने इतना अपने आप को पुश करके काम किया है, तो ये सिचुएशन इज़ फेयरली कंफर्टेबल फॉर मी, बट आई डोंट अलाउ कंफर्ट टू मेक मी a mediocre content creator. I don't want to have that ever. I just want कि जितना भी हो मेरे को मन में एक तसल्ली होनी चाहिए, मैंने अपना 100% दिया। You are here, जिसको कुछ सालों पहले तू भगवान से हाथ जोड़ जोड़ के प्रे करती थी कि मुझे भगवान इधर पहुंचा दो, एंड आप उस चीज़ की कदर नहीं करोगे, ये प्लेटफॉर्म लोगों को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द एक्सपेंसेस 50-50 when you travel with ईशान? Yes, definitely, but other than that, if I have some plans कि मुझे इस लोकेशन पे जाके ये शूट करना है, एंड उसका जो खर्चा होता है that I pay because that is my work. किसी ने पूछा है इमोशनली where are you in your life right now, at what stage? I don't know लाइफ के क्या स्टेजेस होते हैं। आपको केवीसी के मुझे ऑप्शंस देने चाहिए थे। वो फेज़ नहीं होता आई एम माई टॉप प्रायोरिटी एंड उसके आगे मुझे कुछ नहीं दिखता, वो वाला फेज़ में मैं अभी हूँ। सो यही करने की कोशिश मैं कर रही हूँ, एंड मैं एक ऑम्ब्रे लिप भी क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। लेट मी जूम यू गाइज इन।
ऊपर से आपको थोड़ा लाइट दिखेगा, अंदर मैंने थोड़ा मॉव शेड्स डाली हैं। टेल योर फॉलोअर्स अबाउट योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। यार एज सच कोई स्ट्रैटेजीज नहीं है ऑनेस्टली। मेरे पापा मुझे बहुत ज़्यादा एडवाइस करते हैं ऑन वेयर टू इन्वेस्ट, लाइक SIPs में, RDs में, स्टॉक मार्केट में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। अभी हम सोच ही रहे थे कि घर का खर्चा अगर ज़्यादा हो गया तो क्या स्टॉक्स लिक्विडेट कर ले, बट थैंक गॉड उसकी इतनी ज़्यादा ना ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड आई ऑल्सो इन्वेस्ट इन गोल्ड। आप नेशनल पेंशन स्कीम में भी कर सकते हो, NPS में। इफ़ यू हैव अ करियर लाइक दिस जिसमें आपको नहीं पता कि आप ओल्ड एज तक कितने में काम करोगे, तो अभी से आप अपना एक पेंशन की सिक्योरिटी कर सकते हो कि जब आप बुढ़े हो जाओ तो आपको कुछ ना कुछ सम गवर्नमेंट की तरफ से या आपकी जो सेविंग्स है उससे मिलता रहेगा। वॉट अकॉर्डिंग टू यू इज समथिंग यू हैव मेड कॉन्टेंट ऑन बट नाउ यू फील इज नॉट रिक्वायर्ड? आई फील लाइक बहुत ज़्यादा घर की चीज़ें दिखाना ना, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे कुछ था ही नहीं लिटरली, एंड आई वॉन्टेड टू कीप मेकिंग वीडियोज़। सो मेरे को लगा कि मैंने अपने घर को और अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा उस चीज़ में एक्सपोज कर दिया। आई वेंट अ लिटिल टू ओवरबोर्ड एंड कुछ चीज़ें मेरे को प्रोटेक्ट करके रखनी चाहिए थी, एंड इसीलिए यू गाइज हैव नो आइडिया राइट नाउ। लाइक लॉकडाउन के टाइम आपको पता था किस दिन क्या हो रहा था घर में, कब रवि मुक्के मारा था, कब रवि के वो अटैक्स और एपिसोड्स हो रहे थे। ट्रस्ट मी गाइज मैं बताती नहीं हूँ, अभी उससे 10 गुना हो रहे हैं। कल रात को व्हेन आई वाज क्राइंग, उससे पहले एक इतना बड़ा, आई थिंक 12:30 बजे तक रवि का एपिसोड 2 घंटे का चल रहा था, जिसमें वो इतना ज़्यादा चीख रहा था, अपने आप को मार रहा था। उसने यहाँ से खून निकाल लिया, उसने यहाँ पे अपने आप को मारा है, उसके कान से खून निकलने लगा था। उस टाइम जो मेरी मेंटालिटी थी, यू गाइज गॉट टू सी व्हाट वाज हैपनिंग विद मी। अभी भी मैं आपको, आई कीप यू गाइज पोस्टेड ऑन व्हाट्स हैपनिंग, बट आई डोंट नेसेसरीली नीड टू शो एवरीथिंग इन योर फेस। आई नो दिस ट्रिगर्स अ लॉट ऑफ पीपल। मैं भी बीच बीच में बहुत ट्रिगर हो जाती थी। सो दिस इज समथिंग दैट I don't need to do right now. So this is the final look you guys. I did a very pretty, बिल्कुल मेरे सूट से मैचिंग करीना कपूर का जो लुक होता है ना, जो मैंने देखा था काफ़ी साल पहले। I did this eye makeup with a hint of brown and a lot of green. ये बहुत ही एक subtle green है, तो over the top ऐसे तोता वाला green नहीं लगता है। I love the glowy makeup. I think this is something जो दिवाली पे बहुत ज़्यादा सूट करेगा। Love my earrings, love the ombre glossy lip, and the overall look is very colorful, but it doesn't look gaudy. It makes you look like the Indian goddess that you are. I hope आपने वीडियो एंजॉय की हो। नीचे सब्सक्राइब कर लेना। You can also follow me on Instagram @thatquirkymiss, and I will see you guys next time. Happy Diwali. Bye.